الحمدللہ. ہیلو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. کون صاحب بولے؟ جلال الدین آپ کی صاحب؟ آواز. جی میں جلال الدین بول رہا ہوں. اچھا جی جی، جواب دیجیے. آپ مجھے واٹس ایپ پہ آپ نے سوال پوچھا، اس کا جواب دینے کے لیے میں نے آپ کو کال کیا. جی جی جی، جواب دیجیے. اچھا، تو پہلے یہ بات ہے کہ جب میں بولوں مکمل میری بات ہونے تک بیچ میں نہیں بولیں گے. اسی طرح آپ کی بات بھی مکمل ہوگی تب میں بولوں گا. اور 2 منٹ بات ہوگی. آپ 2 منٹ بولیں گے، میں 2 منٹ بولوں گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اگر 5-10 سیکنڈ زیادہ ہو جائے. بھاگیے گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی، موضوع سے ادھر ادھر بھاگیے گا مت. نہیں، آپ کی آوازیں کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آپ پہلے نیٹ ورک پہ آ جائیں. ادھر ادھر بھاگ کر بکواس نہ کیجیے گا. جی وہ نہیں کریں گے، اور بدتمیزی بد زبانی نہیں کریں گے. آپ بھی اور میں بھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جو آپ نے دیوان بدتمیزی نہیں کرتے ہیں. وہ آپ جانتے، دعویٰ مت کیجیے. ابھی دعویٰ تو دلیل سے ثابت ہو جائے گا. ہاں، آپ یہ بتائیے، آپ نیٹ ورک پہ آ گئے؟ جی، میں نے جو کیونکہ سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کٹ کہ رہی اگر تھی. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نہ مانے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ پہلے یہ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاضر مانے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ نہیں، میں سوال کیا ہے، آپ اس کا جواب دیجیے. سوال کا جواب دیجیے، نہ کہ سوال کرنے کا میں نے آپ کو کہا ہے. جواب میں نے آپ کی طرف کیا ہے. نہیں، آپ مجھے پہلے یہ بتائیے، حاضر ماننے پر کیا حکم لگے گا وہ پہلے بتائیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ جو حضور کو حاضر اس بات کا انکار کا پہلے جواب نہیں. انکار کا بحث پہلے نہیں، پہلے اس بات کا بحث ہے. جو دعویٰ کرتا اس ہے، بات پہلے جو انکار. دعویٰ کرتا ہے پہلے یہ دلیل دعویٰ آپ کا انکار کی دعویٰ ہے اور ہمارا اس بات کا دعویٰ ہے. آپ پہلے بتائیے، حاضر مانے. جب جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ دلیل اور ان کے ذمہ جواب دینا ہوتا ہے. آپ نے دعویٰ، آپ کے یہاں دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے جو حضور کو حاضر آپ کا مانے. دعویٰ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر مانے، اس پر کیا حکم ہے؟ وہ مشرک ہے، کافر ہے، کیا ہے؟ آپ پہلے اتنا بول دیں، کیا ہے؟ ہم بتائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص حاضر و ناظر مانے، حاضر مانے، اس پر کیا حکم ہے؟ اتنا بتا دیجئے. بتائیے عبدالسلام دیوبندی صاحب. سوال میں نے کیا ہے، آپ اسے جواب دینے کے لیے آپ کو ہمت نہیں ہے، اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے، یہ بات ثابت ہو گیا. قیامت کی صبح تک کسی بریلوی کے اندر یہ دم ہی نہیں ہے کہ وہ سوال کا جواب دے سکے اور اپنے علماء کو بدعت اور گمراہی سے وہ نکال سکے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ کے گروپ میں بھی ڈالا تھا اور آپ کے پرسنل پہ میں نے بھیجا، لیکن آپ نے اب تک جواب نہیں دیا، اور جواب دینے کے بجائے آپ جو ہے موضوع سے رائے فرار اختیار کر کے سوال قائم کر رہے ہیں. اچھا، تو آپ کی بات ہو گئی. جی بولیں. آپ جو قیامت تک بریلوی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا بولے، اور آپ نے بھی جواب نہیں دیا، تو آپ بھی قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. اور میں جواب دینے کے فوراً بعد آپ بھی جواب دیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ بھی جواب دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے جان سے زیادہ قریب ہے. اس لحاظ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے، اور جو اس حاضر نہ مانے اس آیت کا منکر ہے. اور حاضر جو لحاظ الگ الگ لحاظ سے وہ تعویل کر کے اگر مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اس کے وہ بولنے پر سیاق و سباق سے اس کے انداز اور اس کے جو حاضر و ناظر ماننے یا نہ ماننے کی وہ جو کیفیت ہے اس حساب سے اس پر حکم لگے گا. اور اگر ڈائریکٹ قرآن کی آیات کا ایک دم مطلقاً انکار کرے تو وہ تو کافر ہے. اور اگر اس آیات سے علماء محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا ہے، تو اگر علماء محدثین نے مانا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. اور اگر تعویل کر کے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی سخت گمراہ ہے، کیونکہ سارے علماء کا قول اسی پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے.
अब आप बताइए, मैंने जवाब दे दिया, जी, मुतलकन हाजिर और नाजिर का इनकार करने वाला काफिर है। चलिए माशा लेकिन आप जवाब देंगे हाजिर और नाजिर मानने वाले पर क्या हुक्म है? ठीक, आपने इतना जवाब देके आगे बात बढ़ाएंगे। आपकी बात मुकम्मल हो गई। हम्म। चलिए सुनिए, आपने कहा कि जो हुजूर को हाजिर ना माने वो काफिर है, मुशरिक है, ठीक है ना? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां ये किताब लिखे हैं फतवा रिजविया, जिल्द नंबर 29, सफ़ा नंबर 206। उस पर लिखते हैं, एक सवाल है, उसके जवाब में लिखते हैं कि या रसूलुल्लाह, कहना बेअदबी के जगहों के सिवा हर वक्त जायज़ है, मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर जानना अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है और सही नहीं है, बल्कि दरूदो शरीफ या सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक को खुद मदीना मुनव्वरा में पेश किया जाता है। यूं नहीं, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खुद हाजिर होते हैं, जैसा कि नसई शरीफ की हदीस में वारिद हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है, तुम जहां कहीं भी हो। निज रसूलुल्लाह, यहाँ तक बात हो गई। तो इसमें ये बात लिखा है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर जानता है, यानी मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर जानना, ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ हैं। अब बताइए, आपके फतवा से आपके मुर्शिद पीरो मुर्शिद आपके आला हजरत ये काफिर हुए या नहीं? पहले भेज दीजिए, वो स्कैन भेजिए, फोटो भेजिए, सुनिए, मैं मैं पढ़कर भेज रहा बताता हूँ, हूँ। आपको स्क्रीन भेज रहा हूँ। आप खयानत कर रहे हैं उससे पहले उसमें। इस मौजू पर बात कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। और आपने कह दिया है जो हुजूर हाँ, को इसको हाजिर ही ना नहीं, माने इबारत वो पढ़कर काफिर है। ये मैं भेज रहा हूँ, रुके रहिए, और बात ना करें, स्कैन भेज दें, जी जी, स्कैन भेज और दें मैं पहले आपको स्कैन। उसी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। फोन मत काटिएगा, भेजिए, लाइन पे रहते हुए भेजिए। एक मिनट रुके रहिए और आप इसको पढ़ लीजिए। हाँ भेजिए, पढ़कर बता रहा हूँ आपने क्या खयानत किया उसमें। जी जी, खयानत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए देवबंद ये खयानत नहीं करते हैं, कभी भी खयानत नहीं करते हैं। आज पहले भेजिए ना भाई, बताता हूँ। जी जी, हाजिर मानना ये उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ है। निकाल रहे हैं। और अगर नहीं तो फिर असल किताब से मैं आपको निकाल के भेजूंगा ना, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। भेज दीजिए। ये देखिए, मैं आपको उस नंबर पे 80 वाले नंबर पे मैं भेज रहा हूँ। हाँ मेरे नंबर से ही भेजिए, मेरे हाँ। नंबर से ही भेजिए। जी पहुंच गया, आप देख लें। देख रहा हूँ। हाँ आपका आया है, आपने फतवा रिजविया की इबारत भेजे जी और ये मैं पूरा मसला पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। आपका दावा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर मानना, हाजिर मानना, हाजिर जानना, हाजिर का लफ्ज़, नाजिर का अलग हाजिर मसला है, मानना। हाजिर का अलग, दो नहीं, आपका हाँ, दो मसला है, हाँ, हाजिर और नाजिर। इसमें हमने आपको एक साइड लंबा पकड़ मत किया है, कीजिए। दूसरे पे नहीं। इसलिए हो गई, मैं मान हाजिर लिया, मैं जानना मान या लिया। अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। और आपने कहा है जो हाजिर ना माने वो काफिर है। जी आप लंबा ना करें, आप तो दो पहले बोल चुके हैं, हाँ, अब मुझे बोलने देना। ध्यान करा रहे हैं ना आपको। यार नहीं, आप बोल चुके हैं, बार बार बोलना जरूरी नहीं है। मैं दोनों मान लिया, फिर आप लंबा क्यों कर रहे हैं? बोले वक्त जाया ना करें। बोले। हाँ, ये या रसूल अल्लाह कहना बेअदबी की जगहों के सिवा हर वक्त जायज है। ये बता, क्या बात बता रहे हैं? बेअदबी के जगह के सिवा हर वक्त नहीं। पूरा मसला समझा के बताऊंगा। नहीं, ये मसला जिस बात हो गई बेअदबी की जगह का मतलब, चुप तो हो जाए। जी बोले, इसे दोबारा बोलना ना पड़े, चुप हो जाए। चुप, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, आपको बताइए, आप सुनेंगे रिकॉर्डिंग, खुद ही सुन लीजिए। कितना बुरा लगता है बीच में बोलना। आपकी बात मुकम्मल हुई तब मैं बोलना शुरू किया। बात क्या कीजिए ना।
मौजू पर ही बोल रहा हूँ मैं, और कहाँ चला गया मैं? उसी मौजू पर बोल रहा हूँ, और आप बार बार जो है बीच में बड़बड़ा रहे हैं, गलत बात है ये। ज्यादा बड़बड़ाएंगे दोबारा बोलना ना पड़े, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, बोलना ना पड़े कि चुप हो जाइए, ये बुरी बात है। या रसूल अल्लाह कहना बेअदबी की जगहों के सिवा हर वक्त जायज है। बेअदबी की जगह पेशाब पखाना, बैतुल खला या कहीं गुनाह की जगह, वहाँ पर या रसूल अल्लाह कह के वहाँ कहना गलत है। मगर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात लिखा हुआ, सरवर कायनात। अब मैं ऊपर सवाल क्या है, सवाल जो लिखा है वो समझ में आएगा कि इसका जवाब क्या वजह है, जवाब की क्या वजह, जवाब देने का किस लिए जवाब दिया जा रहा है, सवाल से समझ में आएगा, है ना? हाँ, तो जवाब जो लिखा है किताब में जो लिखा है आपके मौलाना अहमद रजा खान ने, वो पढ़िए, अपनी तरफ से ये बकवास ना करें। कायनात पढ़िए, कौन ने लिखा हुआ है? हाँ, या रसूल, ये जो इबारत है ना, आपने सिर्फ एक ही सफा भेजे, आगे से इसका जवाब चला आ रहा है, तो आगे का भेजेंगे। सरवरे कायनात पढ़िए, सरवरे कायनात। मैं सरवर कायनात बोल रहा हूँ, लेकिन आप पहले और एक सफा पहले का भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि सवाल क्या है। जहाँ तक बात है वहाँ तक इसमें मौजूद है। चलिए, सवाल जवाब और सवाल दोनों पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। जब जवाब पढ़ेंगे तो सवाल क्या था? अरे यार, आप जवाब पढ़ रहे हैं, सवाल क्या था? सवाल जवाब पढ़ रहे हैं, सवाल का जवाब इकट्ठा करेंगे, कौन नहीं लिखा हुआ, तब आपकी गुस्ताखी साबित हो जाएगी, तब आप गुस्ताख साबित होंगे, खयानत करने वाले साबित होंगे। सवाल और जवाब तो खुले आम। पहले आपको इस बारे में साबित कर चुका हूँ। कौन पढ़ रहे हैं, जो इबारत मौजूद है उसको अब आप बदल के पढ़ रहे हैं, पढ़िए। मैं आप पहले जवाब, ये लफ्ज अगर एक लफ्ज की गलती हुई है और इसमें दोनों कहना सही है, यहाँ लफ्ज लिखा हुआ नहीं है, मैं लफ्ज़ कौनैन पढ़ा, तो इसको बार बार दिक्कत है। क्यों आप खयानत कर रहे हैं, अब बकवास कर रहे हैं और बात लंबी कर रहे हैं? चलिए, ये खयानत नहीं कहलाएगा। आप पहले बताइए, दूसरी बात पहले पूरा भेजिए, इबारत पूरा भेजिए, पढ़ें पहले दूसरा सवाल भेजे, कि फंस गए आपने आला हज़रत को काफिर करार दी, तो आपका दिल धक धक करना छोड़ दिया। हमारे देवबंदी सब काफिर साबित हो गया, देवबंदी सारे के सारे काफिर मुर्तद साबित हो गया। अभी बड़बड़ा रहे हैं, जवाब नहीं भेज रहे हैं, आपने जवाब नहीं भेज रहा है, जो हाजिर ना माने जवाब नहीं भेज रहा है, क्योंकि ये सवाल और जवाब दोनों मैं समझा के बताऊंगा, तब पब्लिक को समझ में आएगी कि यहाँ आला हज़रत की गलती नहीं है, देवबंदी कर रहा है, यहाँ आला हज़रत की गलती नहीं है। देवबंदी आप बोलेगा नहीं। अब इसके अंदर जिन सवार हो गया, इसके अंदर भूत सवार हो गया, अब ये जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये खयानत कर रहे हैं। सवाल और जवाब दोनों मिला के अब मैं समझाऊंगा, जवाब पढ़ रहे थे, जवाब कहाँ? आप फंसे हैं तो भाग रहे हैं। आप खुद बताइए, इसमें सवाल क्या था जिसका आला हज़रत जवाब दे रहे हैं? अजीब, मैंने कहा सवाल क्या था? आप इस पे ये जो पढ़ रहे थे इबारत, तो आप पढ़िए। चलिए, आपसे गलती हो गई, इबारत सिर्फ जवाब है, सवाल क्या है? सवाल में मिला के पढ़ेंगे। सवाल मुझे याद है, तुम भेजो ताकि तुमको मैं पढ़ के बताऊं। और सरवारे कायनात है, सरवारे कौनैन है, दोनों अल्लाह के नबी की तारीफ हो रही है, लेकिन मैंने आला हज़रत की लिखी हुई अल्फाज नहीं बोला। मेरे चलो गलती हुई, लेकिन इसके कोई बड़ा गलती इशू नहीं है जिसमें गुस्ताखी हो या फिर कोई कुफर हो या खयानत हो। दोनों लफ्ज में तारीफ है, दोनों लफ्ज में तारीफ है, इसमें खयानत भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे ताबील आप पेश कर रहे हैं, मैंने क्या कहा आपको? पेश कीजिए। बड़ा लंबा क्यों कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं ताकि वक्त जाया कर रहे हैं आप। वक्त जाया आप कर रहे हैं, आप जवाब सवाल भेजिए। मेरे मोहतरम, मैं वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आगे पढ़िए, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करें। मुझे पहले सवाल भेजिए, मुझे सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया था जिसका आला हज़रत ने जवाब दिया? रसूलुल्लाह कहना, देखिए चश्मा लगा लीजिए, टीन का चश्मा हो, जवाब आपको दे चुका हूँ, टीन का चश्मा हो तो लगा लीजिए, लाजवाब है, इसलिए आज सवाल नहीं भेज रहा है। सवाल लिखा हुआ है, जवाब के ऊपर सवाल है, जवाब के ऊपर सवाल है। देखें, आंख खोल के, चश्मा लगा के, जवाब के ऊपर सवाल है, मतलब जहाँ जवाब लिखा है ना, उसी के ऊपर सवाल कायम किया हुआ है। सवाल उठते बैठते या रसूलुल्लाह के कहने कुछ कर, रुक रही एक मिनट। आपने सवाल नहीं भेजा,
एक मिनट रुके रहिए। एक ये देखिए नंबर 4 है, नंबर 4 है ना, तो या रसूलुल्लाह कहना बेअदबी की जगहों के सिवा हर वक्त जायज है। यहाँ से आप पढ़िए, सवाल ऊपर जो है बहुत सवाल के काम किया गया, उसमें से एक सवाल ये भी है कि हाजिर नाजिर मानना चाहिए या नहीं, उसमें सवाल है। पेज आगे भेजिए, आगे का पेज भेजिए। उस बार भेजे थे जब आपको लाजवाब दिया था, रुके रहिए, आपको लाजवाब दिया था, उसका जवाब उस वक्त दिया था, फिर आपको शर्म नहीं आई, दोबारा फिर इसी एतराज को लेके आए बहुत दिन के बाद। अच्छा आपको लगा कि मैं भूल गया हूँ। आप उसमें भाग, मैंने क्या जवाब दिया था हाँ वो मुझे पूरा याद है, और मैं यूट्यूब भी डाला हूँ, मैंने यूट्यूब पे भी डाला हूँ। आपके जो बेहुदा सवाल था, एतराज था, और उसका मैंने जवाब भी दिया हूँ, यूट्यूब पे मौजूद है। आप देखें कि ये बरेलवियों के मुनाजिर बनते हैं और ये जलालुद्दीन है। हाँ, दो मुनाजिर बनते हैं सामीन हजरात। ये जवाब कहता है कि सवाल नहीं भेज रहा है। तौसीफ भाई तो कहता है बेहुदा सवाल। भाई फोन काट दीजिए, ये नालायक है, बोल नहीं पाएगा। ये जवाब सवाल भी नहीं